Good morning, ma'am. Morning, Bhavya. We have a combined class, children, right? 9th A and 9th B together. Do we have any Mehak Yadav in this class? Ma'am, I'm Yugraj. I'm joining from my sister's account. Then I'm changing. Okay, fine, fine, Vijay, fine. Good morning, ma'am. Good morning. Class, you need to tell me that in the previous class, we were doing the features of the democracy, right? So you need to tell me till where we have done the features of democracy. Ma'am, we will do civics today. Beta, this is civics period only, bache. Good morning, ma'am. Good morning, Loma. Good morning, ma'am. Good morning, Anukriti. Yes, Parth, I told you I'll explain all the features, but I need to know that how many features I gave you in writing. Fine? Yes, ma'am. Hmm. Children, I'm sharing the screen with you all. Excuse me.
Can you all see the screen, bachas? Yes, ma'am. Can you see the book? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा ये हृतिकेश गंगवार कौन है? आपकी क्लास के हैं? Fine. बेटा ये हृतिकेश गंगवार कौन है? आफ्ताब अली कौन है ये? इज आफ्ताब इन आवर क्लास? Okay, children, tell me till which all features I gave you the other day. Ma'am, just 1 minute. Ma'am, the last feature which we have written was a democratic government rules within limits set by constitutional laws and citizen rights. Okay, very good. Fine. Okay, now let me summarize, let me explain you all these features. The first feature was, can you all see the book over here on the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Features of democracy. We have started with the simple definition. They are simply telling you that what definition they started with. You know, this was all about the conversation that the teacher and the student had. Okay. So they say democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. So now this definition raises many questions. Why? Who are the rulers in this definition? As per you, who are the rulers in the definition? Can you tell? Ma'am, people. The representatives. Okay? The representatives basically they are talking about. Who are the rulers in this definition? Which officials must be elected for any government to be called a democracy? Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? Then they say what kind of election constitutes a democratic election? What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? Then they say who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? Should this include every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizens this right? Finally, what kind of a form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in a democracy, or must a democratic government function with some limits? Is it necessary for a democracy to respect some rights of the citizens? Now, all these questions we will be doing one by one by taking the case studies. सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, मेजर डिसीजन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. बेटा कोई आफ्ताब अली है क्या अपनी क्लास में? प्लीज, ही हैज बीन इन द वेटिंग रूम फॉर क्वाइट लॉन्ग, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड हिज नेम. If you could help me out. Has he been attending the other classes also? No, ma'am. No, na? Ma'am, not in this section. We don't know of the end. In the other section also it is not there. Fine. Let me just first confirm. No? ये इल्मा की तरह, इल्मा का तो नहीं है कहीं? इल्मा आ रहे हो इस पे, इससे इल्मा खान.
No, Beta ma'am. Aftab, Beta Aftab, please switch on your camera. Aftab, keep the camera on, beta. Aftab, hey, Vinny. Aftab, chali. Okay, fine. Now looking at the definition, now who are the rulers in this definition? I told you rulers are those people who are chosen by the common people who have the right to vote in the elections. Okay? Can everybody vote in the elections? Class? No, ma'am. Ah. Who has the right to vote in elections? Ma'am, adult Above citizen. 18. Yes. 18 and above. 18. See, in our country, because India is the largest democracy in the world, so we follow democracy, and in democracy, we are following universal adult franchise. Now, in this universal adult franchise, what we do, our country, since the time we had enforced our constitution, we have given all the people, all the citizens of the country, the right to vote, but only those who are 18 and above. Below 18 do not have the right to vote because universal adult franchise does not go to them, right? So universal adult franchise, when we say, we are talking about people who are 18 or more. Is it clear? Yes, ma'am. Fine. Now, Yes, second condition, everybody who is 18 plus can vote? No. Only one condition, if a person is insane mind. इंसेन माइंड मतलब कोई भी इंसान जो कि अपने सेंसेस में नहीं है, जो कि जिसको यही नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या जो उस कंडीशन में नहीं है टू जज व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज नॉट व्हाट इज राइट, इन दैट केस जो इंसेन माइंड के लोग होते हैं उनको हम इलेक्शन में वोट करने का राइट नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं. ठीक है, ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Please. हाँ. Yes, ma'am. थर्ड थिंग वो लोग एक मिनट बेटा, चलिए अब कह रहा है जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा चलो, नहीं इतना क्लियर हो गया ना कि दोज हु आर ऑफ इंसेन माइंड दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट. ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, बाकी सबको होता है जो 18 और 18 प्लस होते हैं. ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, ma'am. Now coming to the second point, that is what kind of election constitutes a democratic election. कह रहा है कि इलेक्शंस कई तरीके के होते हैं. क्या कई तरीके के इलेक्शंस होते हैं? Yes. बेटा इलेक्शन मतलब इलेक्शन ही होता है जिसमें हम चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, बट इलेक्शंस जो हैं उसका जो प्रोसीजर होता है दैट हैज टू बी वेरी क्लियर, दैट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट. ठीक है, अब कई बार क्या है हमारे इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सेवरल एग्जांपल्स जहां पे कि डेमोक्रेसी तो हम कहते हैं, हम ये भी कहते हैं कि दैट वी आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन बाय द पीपल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. बट वो इलेक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं. फ्री एंड फेयर का मतलब वहां पे लोगों को लिबर्टी नहीं है टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव दैट दे रियली वांट टू ब्रिंग टू
पावर। दूसरा, मैम वेयर? अभी हम बताएंगे, पहले इतना समझ लो आप बच्चे, पहले इतना समझ लो। कुछ कंट्रीज में जो इलेक्शन के प्रोसेसेस हैं, दो वो डेमोक्रेसी है, बट इलेक्शन प्रोसेस जो है वो केवल नेम सेक होता है, बट एक्चुअल में टोटली अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो प्रैक्टिस की जाती हैं इन दी इलेक्शन प्रोसेस। तो अगर इस तरीके के इलेक्शंस होते हैं जहां पे इलेक्शंस आर प्री डिसाइडेड, द रिजल्ट्स आर प्री डिसाइडेड, इन दैट केस वी कैन नॉट से दैट द इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। ठीक है बेटा, दिस इज अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. See, whenever I ask you understood or not, एक साथ बता दो मेरे को, because then I don't feel like, you know, moving ahead then. Okay, so elections and rulers clear to all of you? Yes, ma'am. अच्छा, अब who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? देखो, एज द सिटीजन ऑफ द कंट्री हम सबको अधिकार है, हमारे कंट्री में कोई ऐसा कंडीशन नहीं लगाया गया है कि कोई गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर आपको इलेक्शन लड़ने हैं, जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए जो जनरल असेंबली इलेक्शंस होते हैं, उसमें आपकी एज अगर 25 है तो 25 प्लस 25 या 25 प्लस वाले जितने भी सिटीजन्स होते हैं, दे ऑल हैव द राइट टू बी कंटेस्टिंग इलेक्शंस, राइट? ये क्लियर हुआ? मैम बट हाउ? हाँ, वो तो, अरे बेटा, इधर यू कैन गेट एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट वी हैव इन द कंट्री, और यू कैन हैव योर ओन पार्टी मेट। जैसे ये जो अपने अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि आप पार्टी के लीडर हैं, यस मैम, है ना, ये क्या है, इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई। ठीक है, कई बार जरूरी नहीं है कि हम किसी दूसरी पार्टी के साथ एसोसिएट करें, हम अपनी खुद की पार्टी भी बना सकते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे भी कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस। ठीक है, बशर्ते, मैम हाँ बोलो बेटा। मैम बट हाउ अ beggar can fight the election? Ma'am, how can a beggar can fight the election, ma'am, because he does not have enough money for वो बात सही है, doing that. हो सकता है कि Yes, एक ma'am. आदमी, बेगर का मतलब ये कि वो आदमी जिसके जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है जब उसको लोग सपोर्ट करते हैं, है ना। इलेक्शंस में कुछ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी सपोर्ट करता है लोगों को, पीपल टू कंटेस्ट इलेक्शंस, और दूसरा उनके आसपास के लोग जिनको ये लगता है कि भाई ये आदमी एकदम सही रिप्रेजेंटेटिव रहेगा हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हम वो सब चीजें नहीं कर पाते हैं जो ये बंदा अकेले कर लेता है। तो उस ऐसा कुछ अगर कंडीशन है, तो उस कंडीशन में एक आम आदमी भी, एक जनरल सिटीजन भी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसे वाला होना है, या आप, जरूरी नहीं है कि आपके घर के सब लोग जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हो। कोई भी आम इंसान जो इलेक्शन कर लड़ना चाहता है और उसके अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है टू बी अ लीडर, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कंडीशंस दी गई हैं जिसके तहत, जिसके अंडर एक इंसान इलेक्शंस लड़ सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्लास? Yes, ma'am, clear. इतना Yes. क्लियर? दूसरा वो क्या कह रहा है कि हमारे कंट्री का हर आम आदमी, वो आम आदमी जो कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो आना चाहता है, उसकी एज 25 साल है, उससे ऊपर होनी चाहिए, तब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। ये कंडीशन है टू कंटेस्ट इलेक्शन। और कोई भी आम इंसान जो कि 18 या 18 से प्लस है, वो उस इलेक्शन में वोट कर सकता है। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. इसमें लिखा है ना, Yes, who are the ma'am. people who can elect the rulers और get elected as rulers. elect the rulers में कंडीशन क्या है, आपकी 18 प्लस आप होने चाहिए या 18 के होने चाहिए टू वोट, और आप 25 या 25 प्लस होने चाहिए टू कंटेस्ट द इलेक्शन। ठीक है, Yes, ma'am. अब इसमें वो कह रहा है, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? कह रहा है इसमें हर इंसान, हर सिटीजन को इक्वल बेसिस पे लिया जाता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, इसमें हर कोई जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बट कंडीशन क्या है, एज क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया कि भाई इक्वल बेसिस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज वोटर्स, एज
रूलर्स, पर कंडीशन क्या है, रूलर्स बनने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए 25 साल होना चाहिए और वोट करने के लिए 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 18 या 18 प्लस होना चाहिए। दिस इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it says, can a democracy deny some citizens this right? कह रहा है क्या डेमोक्रेसी किसी सिटीजन को ये डिनाई कर सकती है राइट, हाँ कि ना? What do you feel, class? No, ma'am. No, ma'am. Yes, they can. कि democracy can deny some citizens this right. पहला right, वो इंसान जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है उसको वो एज अ कैंडिडेट नहीं आने देती है। भाई आपने 10 लोगों का मर्डर कराया और आप जो है इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, क्या आपको सरकार क्या आपको इलेक्शन कमीशन इस बात की वो दे देगा परमिशन? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, ये समझ आ गया, ये क्लियर हो गया। सेकंड Yes, ma'am. सेकंड पर्सन जिसको डिनाई किया जाता है राइट इज द पर्सन हु इज ऑफ एन इनसेन माइंड। जो इंसान मेंटली इनस्टेबल होता है उसको भी वोटिंग और रूलर होने का या कैंडिडेट होने का जो राइट है वो डिनाई किया जाता है। केवल ये 2 कंडीशंस हैं जिसमें कि डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स को डिनाई कर सकती है वोट करने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार, ठीक है, क्लियर क्लास? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, आई होप दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. अब ये कह रहा है Yes, finally, हाँ, now it says finally what kind of a form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in a democracy or must a democratic government function with some limits? कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बन के आती है वो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, उसमें उसको किस तरीके के काम करने के अधिकार होते हैं। भाई हम सबको ये बात पता है कि पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होती है वो वही बना पाती है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी से विन करती है ना, वही तो बनाती है। Yes, ma'am. भाई बीजेपी Yes, की ma'am. गवर्नमेंट क्यों है? हाँ, बीजेपी की गवर्नमेंट व्हाई डू वी हैव? बिकॉज वी नो दैट बीजेपी इन द इलेक्शंस व्हिच वर हेल्ड, द लोकसभा इलेक्शंस व्हिच वर हेल्ड इन दोज इलेक्शंस, बीजेपी गॉट मैक्सिमम ऑफ द वोट्स, सो दे केम टू पावर, राइट? तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन दिस केस गवर्नमेंट किस तरीके की है? ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हुई, एक लीगल गवर्नमेंट हुई जो लोगों के द्वारा चुनी गई और लोगों ने ये कहा कि हमें इस पार्टी को पावर में लाना है ताकि ये हमारे ऊपर रूल कर सके, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से समझती है और हमारी हर जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारे वेलफेयर के लिए सोचती है। तो क्या हुआ, किस तरीके की गवर्नमेंट आई? एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई। वो पार्टी पावर में नहीं आई जो हार गई थी इलेक्शंस, वो पार्टी पावर में आई जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले थे और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी, ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हाँ, अब दूसरा Yes, ma'am. वो कह रहा है कि क्या जो इलेक्टेड रूलर्स है वो अपनी मन माफिक अपने मन के हिसाब से रूल कर सकते हैं या देयर हैज टू बी सम लिमिट्स। तो ये हमने पढ़ा है, जो लास्ट वाला फीचर हमने आपको लिखवाया था, 4th फीचर, कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इट हैज टू रूल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। जो भी हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स दिए गए हैं फॉर the elected representatives to rule the country in that particular manner, तो जो चुनी हुई सरकार होती है या चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी पावर्स को कन्फाइंड करा जाता है, उनकी पावर्स को लिमिट किया जाता है, बताया जाता है कि आपकी जो पावर्स है वो इतनी है, आपको विद इन दिस लिमिट ओनली आपको रह के अपने काम को करना है। आप आउट ऑफ द वे जाके या कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को वायलेट करके यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर पावर्स। एक प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या एक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ये बोले कि भाई मैं तो भाई जो है भाई प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन, है ना, तो वो ये कहे कि भाई मैं तो राष्ट्रपति हूँ या मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑफ द कंट्री, तो आई कैन डू वट एवर आई फील लाइक, आई विल किल पीपल, आई विल डू वट एवर विल कम टू माई माइंड। इन दैट केस इफ द प्रेसिडेंट डज सो, दैट मीन्स प्रेसिडेंट इज वायलेटिंग द लॉ, ठीक है। प्रेसिडेंट की जो भी पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं कि प्रेसिडेंट क्या क्या पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे यू एज अ स्टूडेंट, आई एज अ टीचर, वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस, राइट? Yes, ma'am.
Same way, the elected representatives in a democratic government, they also have certain limits. They have to work in accordance to the constitutional norms. Whatever laws, whatever powers they have been given, they can exercise only those powers and they cannot go beyond that. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है. दूसरी चीज, लास्ट पॉइंट, हाँ लास्ट लाइन इसमें लिखिए, इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजंस. अगर आप देखो हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री के हर सिटीजन को, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, हर किसी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. दिए गए हैं ना, मौलिक अधिकार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. Yes, ma'am. वो ये कह रहा है, Ma'am. तो ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेसी जो होती है, उसमें कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो कि हर सिटीजन को दिए जाते हैं, और ये बेसिक राइट्स हर सिटीजन को अधिकार होता है उनको एंजॉय करने का. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है, और अगर वो वायलेट करेगी, देन देयर आर सर्टेन नॉर्म्स अंडर विच दैट पर्सन इज आंसरेबल. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको ये सारी चीजें अगर अच्छे से समझ में आई, तब हम ये पढ़ेंगे मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स. ठीक है? एनीथिंग दैट हैज नॉट बीन क्लियर और अंडरस्टूड? बेटा हो गया, सबको क्लियर है ये? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब हम आते हैं हमारी पहली केस स्टडी पे. हमारा पहला फीचर जो हमने आपको बताया था, वो हमने ये बताया था दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. कह रहा है कि जो भी फाइनल डिसीजन होता है, वो जो हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो लेते हैं. ठीक है? अब हम ये केस स्टडी पढ़ेंगे जिसमें लिखा है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. इट इज अ केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान वेयर दे हैव टोल्ड यू अबाउट द मिलिट्री कूप. मार्शल मिलिट्री वालों ने जो है कंट्री के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है कूप करा. कूप इज बेसिकली, हम कैसे समझाएं आपको, साजिश करी एक तरीके की, जिसमें strategy it is a sudden overthrow of a government रणनीति illegally जो है, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसको उन्होंने हटा दिया. ठीक है? ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि इस केस स्टडी में आप पढ़ोगे कैसे पाकिस्तान में 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री के जनरल थे, चीफ थे, उन्होंने एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज करा और 1999 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के अपने आप को एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री डिक्लेयर कर दिया. राइट? देन ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, from general to president, and in 2002 he held a referendum. referendum का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्ट वोट होता है जिसमें कि पूरा का पूरा इलेक्टोरेट जो है वो ये पूछता है कि क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे. तो उसके अंदर जो है वो एक रेफरेंडम हुआ. उस रेफरेंडम में जो पाकिस्तानी मीडिया जो थी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने कहा कि जो रेफरेंडम हुआ था परवेज मुशर्रफ ने जो करवाया था, दैट वाज ऑल बायस्ड. उसमें कोई भी सही बेसिस नहीं दिए गए थे, और किसी भी पाकिस्तानी ने ये नहीं कहा था कि भाई हमें जो है मिलिट्री रूल चाहिए हमारे कंट्री में. पर क्योंकि रेफरेंडम में मैनिपुलेशंस हुए, तो ये हो गया कि भाई 2002 का जो रेफरेंडम था, उसने जो है 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया किसको? परवेज मुशर्रफ को, टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. इतना समझ में आया बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा करते हैं, Yes, ma'am. ऐसा करते हैं, यू रीड दिस एंड देन आई विल एक्सप्लेन. ओके? Sanadhya, Yes, are you ma'am. there? Yes, ma'am. Can you read? Yes, ma'am. Read from the beginning. Ma'am, major decisions. हाँ, major decisions by elected leaders. Major decisions by elected leaders. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999.
He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5 years extension. Pakistani media, human rights organizations, and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council which is dominated by military officers. After passing this law, elections were held to the national and provincial assemblies. So Pakistan has had elections, electoral representatives have some powers, but the final power rested with military officers and General Musharraf himself. Okay. Clearly, there are Fine, many fine, fine, reasons fine, why fine. Pakistan. Fine. Okay. Have you understood this whole paragraph? Ma'am, last line. Yes, ma'am. Okay. Roma, are you Yes. there? Roma, are you there? Roma, are you there? Bhavya, are you there? Yes, ma'am. भव्या हमें बताओ आपको क्या समझ में आया इस दोनों पैराग्राफ्स जो पढ़े अभी सानिध्या ने? Have you understood anything or nothing was you were not able to relate? Were you able to relate? Yes, ma'am. I understood. Please, can you explain little bit to me? Yes, ma'am. हाँ बताओ बेटा क्या समझ में आया? Ma'am, so in October 1999, ma'am, a General Parvez Musharraf, he led a military coup. Then, ma'am, he, ma'am, and after that, he declared himself as chief executive. And then in 2002, held a referendum. Ma'am, like ma'am, the country granted him a 5-year ठीक है. extension. After that, he changed his resignation to a president, and after that, president, ma'am, he overthrew democratically elected governments, and ma'am, after that, Ma'am, malpractices are the illegal work. हाँ malpractices मतलब unfair means Bad practices. wrong practices. ठीक है, wrong practices. and ma'am, I didn't understood the last 4 lines of the paragraph. Okay, fine. Anokhi, can you explain if you have understood? Is Anokhi there? Yes, ma'am. I'm there. Ma'am, both the paras. No, you tell me the second paragraph. First, she has told that a military coup was also organized and a referendum was done. In that referendum, the elected body, certain malpractices were practiced where the elected body said that yes, General Parvez Musharraf has been granted, 5 years extension, so he can remain as the president of the country, right? Right? Yes, ma'am. Second part. Yes, ma'am. So, ma'am, after the referendum, many activists in the media, they said that, ma'am, this referendum was biased and that it was fraud. It wasn't done by right means. And later, after some time in 2002, he issued a legal framework order, ma'am. So, in a way, he amended the Constitution of Pakistan. Only the president could dismiss the national and provincial assemblies. So, ma'am, whenever elections were taken place, the people could vote. They had elections, but the final power rested with Military officers. him itself and with the military officers. military officers. Fine. Like, though elections were there, everything was the way it should be in a democratic country. But the elections were not actually democratic. Elections were democratic, but the real decision-making powers that were there, they were not in the hands of the elected representatives. Actual powers were with the military officers.
right? So this is how we come to know that though Pakistan is a democratic country, but because of the military coup, whatever took place, whatever happened in the country after 1919, it was all manipulative. Everything was changed as per the needs of the rulers, right? And all the rulers, those who were there, especially, you know, because it was a military coup, all the military had the powers, had taken the powers in their hands. So they got the right to take the decisions on the behalf of the elected representatives. For people, they had chosen their representatives, but the decisions were not taken by those elected representatives. Decisions were taken by the military officers or by General Parvez Musharraf. I think these two paragraphs are clear and understood to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So with this, case study, Ma'am, हाँ, ma'am, बोलो बेटा. ma'am, can you explain me that who is a civilian cabinet? क्या चीज? Ma'am, who is a civilian cabinet? बेटा जो अच्छा एक मिनट रुको. ये हम दूसरी क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि 1 मिनट से भी कम समय बचा है. मैं जैसे ही शुरू करूंगी आपको एक्सप्लेन करना, वो टाइम खत्म हो जाएगा. अभी अगर हमारा एक और क्लास होगा तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी आप हमें रिमाइंड करा देना कि ये एक्सप्लेन करना है मेरे को. ठीक है बेटा? ठीक है, हाँ. चलो, इतना पढ़ने के बाद बेटा ये जो बाकी के 2 पैराग्राफ्स है, प्लीज डू रीड दीज 2 पैराग्राफ्स एंड लेट मी नो व्हाट यू हैव. Were you able to understand the first feature of Yes, a ma'am. democratic country? Democracy, right? Right, children? Yes, yes, हाँ. ma'am. Yes, ma'am. Fine. And see,